سوچیں تھوڑی دیر کے لیے اس سوال کے اوپر. آپ کی روح کا زمین پر آنا کیوں ضروری ہوا؟ کیوں یہ ممکن ہوا؟ کیا انسان خدا کے ارادہ کے بغیر پیدا ہوتا ہے؟ اور اگر آپ کی زندگی میں خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو آپ کی عدالت بھی نہیں ہے. اگر عدالت ہے تو پھر آپ خدا کے منصوبے میں ہیں. خدا آپ کی روح کو جانتا ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایونچولی پیدا ہوگے، عام جس طرح ایویں جانور پیدا ہو رہے ہیں آپ بھی پیدا ہوگے، فطری طور پر پیدا ہوگے، تو پھر نجات کا کنسپٹ بھی آپ کے لیے زیرو ہے، کوئی نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت ہوگی تو پھر آپ کی روح کا زمین پر آنے کا ایک مقصد ہے، اس بدن میں رہنے کا ایک مقصد ہے. آئے ذرا افسیوں کے نام پر اس رسول کا خط کھولیے، 2 باب اس کی 10 آیت کو دیکھیے گا. کوئی بھی خادم پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے. ہم اسی کی کاریگری ہے اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کر رکھا تھا. کس چیز کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا؟ نیک. یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے جلدی سے بائبل کو کھولیے گا ذرا. چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 21. بلند آواز سے پڑھیے گا. سوال کیا تھا غور کیجئے گا ذرا، ذہن میں رکھیے گا. میں کیوں پیدا ہوا؟ یسایہ 43 چیپٹر 43 ورس 21 جی پڑھے. میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری میں نے ان لوگوں کو کس کے لیے بنایا؟ تاکہ دنیا میں جا کے انجوائے کرے، مزے کرے، ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارے. یہ لکھا ہے حوصلہ سے صاحب، یہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کھڑے ہو جائیں. آج تسی پریچر دے میرے نام. میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری تعریف کرے خدا کی، گلوریفائی کرے اپنے خدا کو، حمد و ثنا کرے، تابعداری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، بندگی کرے، تابعداری کرے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کی حمد ہے. آپ کی زندگی یسوع کے جلال کا سبب بنے. خدا کہہ رہے میں نے ان لوگوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری. تو سوال کیا تھا؟ میں آپ کو تیری مرضی. نمبر 4، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا سوچتے ہیں؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں؟ ذرا دلیری سے مجھے بتائیے گا کہ آپ جو کر رہے ہیں شاید آپ مس فٹ ہے. اس میں کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں جتنے ہیں اتنے صحیح ہوں، کیونکہ اسی کدی بھی خود نو غلط ثابت نہیں کر دے. اگر یہاں پہ کوئی تبلے والا ہوگا، کوئی نوجوان، وہ اگر کہے نہیں مجھے پادری بننا ہے، پادری شاہد کو کی پتہ ہے کلام دا، منو بڑی سمجھ ہے کہ بس ایندے خیالات لوگوں نے ذہن چاہتے وہ یہ نہیں بندے کنے سال تو پادری شاہد نے کنی خدمت، کنی بھگتی، کنے چیلنج، کنے طوفانہ نہ لڑیا. اس نے 2-4 گلائیں تے کرنی ہے، میں بھی کر دینا بائبل کھولنی 2-4 حوالے سنانے کلام دا کی میں بڑا اچھا سونا سرمن دے لینا. اور کیا اس کی کالنگ ہے اس کام کے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں. اور اب بہت سارے پادری بڑے اچھے ہوتے ہیں، اب ان کو شوق ہوتا ہے میں بھی ذرا کوئی گیت سر تال لگاؤں، تو جو جس کے پاس توڑا ہے اس کو اٹھا کر اگر میں کہوں گا لوگ کہیں گے پادری کدو جان چھڑے.
ना कुछ सुरता ना तबला किधरे जा रहे हैं, बाजा किधरे बज रहा है, ले कंपोजिशन किधरों जा रही है, तलफ्फुज़ मुंह चों निकल नहीं रहा। तो बास का बुजुर्गानी आवाज का कोई समझ भी नहीं आती, पर उनको शौक है शौक है। तो मैं क्या, तो उसके लिए जरूरी है कि जो काम वो कर सकते हैं वो करे। बास का लोग इवेंजलिस्ट बड़े अच्छे होते हैं, स्ट्रीट इवेंजलिस्ट बड़े अच्छे होते हैं, चर्च के अंदर बास का लोग इंसानी खिदमत बड़ी खुश असलूबी से कर सकते हैं। बास का लोगों को खुदा ने रुपए पैसे की बरकत दी है, वो उस तरीके से खुदा की हम कर सकते हैं। बास का लोग पुलपट पे बड़ा अच्छी मनादी कर सकते हैं, वो उनका तोड़ा है। लेकिन हमारा मसला है कि जिन्हें औहदे नु टाइटल नु ज्यादा इज्जत मिलती है, हम उसकी तरफ दौड़ लगाते हैं, फिर हम मिसफिट होते हैं। मेरी बेटी यहाँ बैठी, मैं गवाही शेयर कर रहा हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं ना बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, एफएससी करवाई, प्री मेडिकल करवाया, मैट्रिक में साइंस, पर वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर रही थी, वो मीडियम एवरेज स्टूडेंट थी। जब वो यूनिवर्सिटी गई, अब साइंस से जान छूट गई, अब और किस्म के सब्जेक्ट थे जो उसके फेवरेट सब्जेक्ट थे। और जो बच्ची 20 पे 50 पे या 30 पे पीछे एवरेज स्टूडेंट थी, जब उसको उसकी मर्जी का एटमॉस्फेयर मिला, वो टॉप 10 टॉप 5 स्टूडेंट में थी। जब हमारी रूह को जिस चीज के लिए हम डिजाइन किया गया है उस तरह का माहौल वो ग्राउंड मिलेगा जिस चीज के लिए हम डिजाइन किए गए हैं, तो फिर हम क्या सांप उड़ सकते हैं? क्या एक परिंदा पानी में सरवाइव कर सकता है? परिंदे को किस लिए बनाया गया, और सांप को और पानी के जानवरों को? लेकिन अगर इनका ग्राउंड फील चेंज कर दिया जाए तो वो चीज के लिए डिजाइन ही नहीं हुए। सेम तरह से सानू भी अपनी खिदमत, अपना टैलेंट परखण की जरूरत है कि मेरे अंदर केड़ा टैलेंट है, केड़ी खिदमत है, केड़ा तोड़ा खुदा ने मेरे अंदर रखा है, ताकि जो तोड़ा उसने रखा है मैं उस तरफ जाऊं ताकि मैं बेस्ट दे पाऊं। लेकिन अक्सर हम अपनी मर्जी से दौड़ लगाते हैं और वो कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं जो दूसरे तीसरे को देखकर हमें लगे रहते हैं, फिर हम एवरेज रहते हैं। बहुत सारे खादम बड़ी दौड़ धूप करते हैं, उधर ही रहते हैं, और जिनको खुदा ने बुलाया होता है वो रात को उठाता है, सुबह कहीं से कहीं पहुंचा देता है, वो हजारों को, लाखों को, करोड़ों की जिंदगियां बदल देते हैं, क्योंकि खुदा ने उनको बुलाया उस मकसद के लिए होता है। और बाद लोगों के पास बड़े पैसे, बड़े वसाइल होते हैं, उठे ही कुएं के मेंढे की तरह होते हैं, एक कुएं में छुपे हुए दूजिया नु गल्ला कर करके अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। ये हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? इस पे बड़ी गुफ्तगू हो सकती है, पर एज ए खादम या एज चर्च लीडर, एज ए ईमानदार, हमें समझ होनी चाहिए कि मेरे अंदर खुदा ने कौन सा तोड़ा रखा है ताकि मैं कामयाब हूं। शुरू में मैंने बात कही थी, खुदा ने हमें आपको कामयाब होने के लिए जमीन पर भेजा है, नकारा सा, बेचारा सा नहीं, ताकि उसके ऊपर आप खुदा की स्टैंप लगी हुई है आपके ऊपर, और वो चाहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी तुम कामयाब हो। मैं 5वां सवाल और आखिरी सवाल, मैं कहां जाऊंगा? मैं कहां? सबसे मुश्किल सवाल। मैं कौन हूं? मैं रूह हूं। मैं कहां से आया? मैं आसमान से आया। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है और मैं क्या कर सकता हूं? आखिरी गल कि मैं कहां, खुदा ने मेरी रूह को भेजा, बदन देकर भेजा, इस बदन के अंदर मैं रहा, जो कुछ मैं कर सकता था खुदा ने मुझे फ्री विल दी, मेरी मर्जी दी, मैं अपनी मर्जी से चूज किया, मैं अच्छा बुरा जो भी किया। उसके बाद जब मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? मेरी डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल क्या है? कितने लोग ईमान से
ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. ایمان سے اٹھانا ہے, مجھے مت دکھائیں. اور جنہوں نے نہیں اٹھایا, انہوں نے کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے؟ اسی سارے اتنے بیٹھے ہیں, اس میٹنگ کا ایک مقصد ہے, اور اگر ایک بھی روح بچ جاتی ہے, جو انڈرسٹینڈ کر جاتی ہے, سارے اندر اکٹھا ہونے کا مقصد پورا ہو جائے. جو شور نہیں ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے, ان کے ذہن میں کیا سوال ہے؟ ان کو کیوں کانفیڈنس نہیں ہے؟ کیونکہ جنہوں نے اٹھایا ہے کمزور وہ بھی ہیں. No one is perfect. ایون میں پچھلے سنڈے کلام سنا آ رہا تھا, یہ کہ تو یوحنا نو خدا نے ایک جگہ تے بھیجیا, اس پنڈ والے نے گل نہیں سنی, تو دونوں شاگرد پتہ کی کہہ رہے ہیں یسوع مسیح نے, اے خداوند کیا تو چاہتا ہے کہ ہم ان کو بسم کریں؟ غصہ اتنا زیادہ ہے. شاگرد ہیں بھائی, یسوع مسیح کو سٹیپ کروا کے تے اس پنڈ نو تباہ بسم, ایک دو بندے نہیں, ایک دو گھر جنہاں نے تانوں نہیں لفٹ کرائی یار انہاں نو مار دو, کہ نہ پورا پنڈ ہی اسی ساڑ دینا. انسان ہے نا. آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں آپ کو بہت سے حوالے دے سکتا ہوں اس ٹاپک کے اوپر, اور میں کوشش کر رہا ہوں بڑے سادگی سے, سمپل طریقے سے آپ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر پائیں. اگر آپ کانفیڈنس نہیں ہے, پورا اعتماد نہیں ہے, آپ پرستش نہیں کر پاتے, آپ ہدیہ نہیں دے پاتے, آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں, آپ کے ہاتھ نہیں چلیں گے, آپ تالیاں نہیں بجائیں گے, آپ خوشی سے خداوند کی عبادت نہیں کر پائیں گے, آپ فتح مند زندگی نہیں گزار پائیں گے, آپ کے دل میں اگر شادمانی نہیں ہے, آپ کہیں گے پتہ نہیں کتنے جانا ہے, کی ہونا ہے, اب ہم ہیں. اور آج کلیسیا اس چیز کا بڑا فقدان ہے, اور خاتم بچڑے بڑا زور لاتے ہیں کدی کدی, لیکن بہت دفعہ ہم کوشش کرتے لوگوں کی زندگی کو, روحانی زندگی کو بیٹر کر پائیں, لیکن جو کور ایشو ہے, جو فاؤنڈیشن ہے, بنیاد ہے, اس کو پوچھنا چاہیے. ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں, کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. 3 4 کچھ توبہ کی ہے؟ اوکے, نیچے کریں. کتنے لوگوں کو توبہ کا دن یاد ہے؟ Anyone know that date? دن یاد ہے؟ اچھا یہ بڑا آسان ہے, میں توبہ یافتہ ہوں, it's okay. وہ وقت جب انسان یا سانپ جب اپنی پرانی انسانیت یا اپنی کھال اتارتا ہے, بری صحبتیں چھوڑتا ہے, شرابیوں کا ٹولہ چھوڑتا ہے, نشے بازوں کی دوستی چھوڑتا ہے, جوا چھوڑتا ہے, بری عادتوں سے کنارہ کرتا ہے, گھر میں بیٹھ جاتا ہے, اپنی زندگی کو, اپنے ذہن کو مکمل طور پر تبدیل کر لیتا ہے, سوچ بدل دیتا ہے, گیئر بدل دیتا ہے, روڈ بدل دیتا ہے, گھر والے پریشان ہوتے ہیں, بالکل ٹوٹل لائف چینج کر لیتا ہے. وہ دن کو کیسے بھول سکتا ہے؟ پاسٹر جان صاحب, پاسٹر احمد صاحب کوئی بول سکتے ہیں؟ اگر آپ کو, کتنے لوگوں کو سالگرہ یاد ہے؟ اپنی سالگرہ تک وہ نہیں بولتا نا, ڈیٹ نومبر, پھر لوگوں سٹار بھی یاد رکھتے, میرا برج کون سا ہے, پتھر کون سا ہے, فلاں فلاں فلاں. کیا روحانی پیدائش کی ڈیٹ یاد ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, اگر یاد نہیں ہے تو پھر کنسرن کرنے کی ضرورت ہے کہ توبہ کی ہوئی ہے کہ نہیں, کیا آپ نئے مخلوق ہو بھی کھیل سے کہ نہیں. ایز کوشچنیبل. آئے ذرا ایک حوالہ ذرا کھولیے گا, احمد کی کتاب چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 39. پاسٹر احمد صاحب کھڑے ہو کر پڑھیے گا. موسیٰ کی
शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बायस बरी होता है। सुनिएगा इस हवाले को, बहुत से हवाले हैं। और मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब बातों से, बेटे के कोशिश की तुम बाइबल खोलें इसमें, उन सब 39 इमाम 39 उन सब बातों से, और सब क्या लिखा है, हर एक ईमान लाने वाला बरी होता है। मूसा की शरीयत के, शरीयत क्या है? ला है, कानून है। शरीयत सिर्फ आपको यह बताती है यहां यहां गुनाह हो गया, यही बताती है। तो रसूल क्या सिखा रहे हैं कि उन सब बातों से, जिन बातों से तो मूसा की शरीयत के बायस बरी नहीं हो सकते, फिर पड़े, और मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला, हर एक ईमान लाने वाला, हर एक ईमान लाने वाला, कहे मैं ईमानदार हूं। रोमियो 9:10 उसकी 9 और 10 में लिखा है, अगर तू मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और ईमान रखे कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, तो तुम निजात पाएगा। मुश्किल काम है। दो चीजें, पहली चीज ईमान रखना है कि यीशु खुदावंद है। कहें यीशु खुदावंद है, यीशु खुदावंद है और खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है। ईमान से कि खुदा ने उसे मुर्दों में से, आप निजात याफ्ता है। जितने लोगों ने इकरार किया, बाइबल में यही लिखा है कि अगर तू ईमान रखे कि यीशु खुदावंद है, नंबर 1। बहुत सारे लोग आज यीशु को खुदा नहीं मानते, फरिश्ता कहते हैं, बहुत सारे और कुछ, वो ईमानदार नहीं। ईमानदार होने का यह लाइसेंस है कि कोई भी शख्स अगर यीशु को खुदावंद मानता है और उसके बाद उसका ये ईमान है कि खुदा बाप ने उसको मुर्दों में से निजात के लिए आगे लिखा हुआ है, या इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान 10वीं आयत भी पढ़े। बस खबरदार ऐसा ना हो कि जो नबियों की किताब में आया है वो तुम पर सादिक आए कि ऐ तहकीर करने वालों, देखो, ताज्जुब करो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे ज़माने में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि अगर कोई तुमसे बयान करे तो कभी उसका यकीन ना करोगे। कभी उसका यकीन है? ऐसा काम क्या किया खुदा ने? ऐसा काम उसने ये किया कि जेड़ी शरीयत असी पूरी करनी सी, ओदे बेटे साडे खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी की। आमीन। जेड़ा कफारा, दुख, मुसीबतें, सलीब, कांटों का ताज, शर्मिंदगी हमने उठानी थी, वो मेरे खुदावंद ने उठाई। ये काम किया और फिर एक शर्त रखी। शर्त क्या है? जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, अगली गल, जेड़ा ईमान लाए, शर्त ये रखी कि जेड़ा भी यीशु मसीह दी सलीब दे थल्ले आ जाएगा वो निजात पा जाएगा। याद रखें, इब्लीस आपसे निजात की शादमानी छीन सकता है, निजात नहीं छीन सकता। हालेलुया। ईमान रखने कभी नहीं छीन सकता, उसके पास ये इख्तियार नहीं है। वो तो ये कह सकता नहीं, तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं, तू गुनाहगार है, तू नाकाम है, तेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। पर अगर आपका ईमान है कि यीशु ने आपके गुनाहों के लिए कफारा दिया है, आप यीशु के लहू से धुले हुए हैं और खुदा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया है और यीशु खुदा है, तो यकीन रखें आप बचे हुए हैं, आप निजात याफ्ता हैं, आप खुदा की हुजूरी में जाएंगे। स्कॉलर लिखते हैं उस जमाने में जब रोमी गुनाहगारों को मसलूब करते थे, तो अक्सर आप यीशु की तस्वीर देखते हैं
एक उनको अंडरवेयर पहना हुआ है, थोड़ी सी जगह कवर है। स्कॉलर ये लिखते हैं कि उनको नंगा सूली पर लटकाया गया, नेकेड। किस कदर यीशु ने मेरी और आपकी खातिर हमने जो बदली छुपे हुए गुनाह किए, उनके लिए जो शर्मिंदगी मैंने और आपने उठानी थी, वो पहले से उठा चुका है। और अभी भी आपसे को पूछा जाए आप नजात याफ्ता है, पता नहीं, जावांगे कि नहीं पता नहीं। ये जहान मिठा ते अगला किन्ने, इब्लीस दा सब तो बड़ा झूठ है। अगला जहान बहुत मीठा है, बहुत खूबसूरत है, फल है। अगर जुबान ही नहीं है, टेस्ट नहीं है जुबान के अंदर, फला नहीं करना है। सोने की सड़कें हैं, टांगे नहीं है तो सड़कों को क्या करेंगे? आंखें नहीं है तो हमें क्या पता सोने की है कि लोहे की है, तो पत्थर है कि क्या है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। वो एक मुकम्मल ग्लोरीफाइड जलाली बॉडी होएगी। जिस तरह यीशु मसीह जलाली बदन में है, हम भी वहां जलाली बदन में होंगे। आमीन। फिलिपियों के खाते में लिखा है, फिलिपियों के खाते में कि यीशु खुद अपनी उस तौफीक के मुताबिक हमारी पस्त हाली को बदल कर हमें जलाली बदन में तब्दील कर देगा, ताकि जिस तरह वो जलाली है हम भी जलाली बने, वैसे करेगा। और जलाली बदन में यीशु मसीह ने खाना भी खाया, मछली भी खाई, रोटी का टुकड़ा भी खाया। इसका मतलब हम वहां खाना और हम अपने खुदावंद के साथ है। सोल क्या था, मैं कहा अगर इजाजत दे एक और हवाला पढ़े, एक और भी मैंने थोड़ा सा 15 मिनट आपके और लेने हैं। ऐसे जरा इफ्सियों 2 बाब उसकी 8, 9, 10 आयत जरा पढ़ लीजिए, 2 आयत। और नजीर साहब आप थोड़ी सी मुनादी करें मेरे साथ खड़े होकर। इफ्सी 2 बाब 8, 9 आयत, फोन से पढ़ दें, इजी है। इफ्सियों 2 बाब, आए अपनी बाइबल को खोलें। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। तुमको ईमान के वसीला से, पहला दसो कि ईमानदार बन गए, लेकिन ईमानदार बनने के लिए कितनी चीजें हैं? कि यीशु खुदावंद है, ये मान रखना है। और दूसरी चीज कि खुदा ने उसको मुर्दों में से एक इकरार, तुम ईमानदार बन गए। जो सारे हाथ आप सब उठाएं, ईमानदार बन गए। और आगे के लिखा तुमको फजल ही से निजात मिली है। हाँ। और ये तुम्हारी तरफ से नहीं है, नहीं, खुदा की बख्शिश है और ना अवाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। हेलो सुन लो, अजने लोग डरे डरे सन कि मेरे ते काम ते निजात तो आपकी ईमान से है। तो फिर सवाल पैदा कितने का माल अच्छे या कितने के कोई कितनी लिमिट है या क्या है? पौलुस रसूल गलतियों के खाते में 2 बाब आखिरी आयत में लिखा हुआ है, अगर रास्तवादी शरीयत के सबब से होती तो मसीह का मरना अब कोई जरूरत नहीं थी मसीह उसमें इंतजाम में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फजल जो है वो गुनाह करने का लाइसेंस है, हरगिज नहीं। 10वीं आयत जरा पढ़िएगा। क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आप किस लिए मखलूक हुए? नेक अमाल। पहली चीज वो क्या कह रहे हैं? निजात ईमान से है, अमाल से नहीं, ताकि कोई फख्र नहीं थे उस बंदे की तरह जो हैकल च कह रहा है मैं रोजे रखता हूं, दया यकीन देता हूं। फजल से, ईमान से। यूं समझ ले, ईमान क्या है? हमारा एटीएम कार्ड है। और फजल, खुदा ने पहले फजल किया, फिर उसने ईमान की दौलत हमें ईमान का एटीएम कार्ड दिया। और यूं समझ ले कि खुदा ने कफारा दे दिया। हमने क्या करना है? ईमान से एटीएम मशीन में यानी फजल में वो कार्ड लगाना है और निजात को हासिल करना है। इस तरह से तो साड़ी निजात किस तरह है जी?
कैसे है? थक तो नहीं गए? सही बताएं, कितने लोग थक गए हैं? मेरे साथ हैं? मैंने वादा वैसे किया था आप बोर नहीं होंगे। कितने लोग बोर हो गए? पहला सवाल क्या था? मैं कौन हूं? दूसरा क्या था? मैं कहां से आया हूं? तीसरा क्या था? मैं क्या कर सकता हूं? चौथा क्या था? मैं क्यों पैदा हुआ? और पांचवा क्या था? मैं कहां? और इंसान क्या है? मेरे साथ है, इंसान क्या है? और यीशु मसीह किस लिए आया? ताकि हमें निजात दे। और किन को? रूहों की निजात के लिए। कलाम किन के लिए है? रूहों की निजात के लिए। आमीन। और निजात हम कैसे पाते हैं? ईमान से और फजल से। आमीन। बैठे बस सब। आखिरी 15 मिनट में इसी को मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलूंगा। आइए मेरे साथ मिलकर रोमियो के नाम पर उस रसूल का खत खोलें। चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 15, 16 and 17। वो बाइबल तुसी खोलो था, मैं भी थोड़ा जान गया है। रोमियो 8 बाब, जितने खादमीन हैं वो भी खोलें। पंद्रह, 16, 17 खुदा उनके कलाम में लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर। कितने लोग डरे? मैंने जब पूछा था सर मोस्टली डर गए थे कि भाई मोड़ हाथ नहीं चुकना होते। आगे क्या लिखा है? तुमको गुलामी की रूह जिससे फिर गाल रूह दी हो रही है, जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि कौन सी रूह मिली है? ले पालक होने की। और उस रूह के वसीला से जो ले पालक है, हम खुदा को क्या कह सकते हैं? अब्बा क्या करे? प्रकाश से। किसी खादम के मुंह के अल्फाज है, वो कहता है साडा जड़ा खुदा है वो रिलेशनल खुदा है। रिलेशनल खुदा का मतलब है ऐसा खुदा जिहड़ा साडे नाल रिश्तेदारी जोड़दा है। अच्छा, एक लफ्ज है अंकल, और बात का आप किसी को मामू इसलिए कहते हैं कि वो आपके मामू का दोस्त होता है। चाचू इसलिए कहते हैं कि वो आपके दादियां जो होता है, कोई कजन उनका होता है आगे पीछे से, या आपके को गांव कहे तो उसको जो मामिया दे पिंड दे हर बंदा ही मामा, और मामिया दे पिंड। ये क्या है? रिलेशन है, पर उनके साथ हमारा कोई बॉडी रिलेशन नहीं है, एक निस्बत है। तो सेम तरह से असी ऐसे खुदा दी इबादत मसीहो कर दे। अगर कोई सारी गल्लां भूल जो एक गल लेके जाना, ऐसा खुदा साडे नाल साझेदारी करता है, रिश्तेदारी जोड़ता है, और रिश्ता भी कैसा जोड़ता है? खुद अब्बा बनता है तो सानू बेटे, और असी उस खुदा की इबादत करते। आमीन। आए इस फजल के लिए, इस रहम के लिए एक दफा तालीम जाए। कितनी मोहब्बत है इसकी। हालेलुया। रब्बना ज़लका बशमीर। सोलमिया जिक्र लिखिए, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के हेलो। पहली गल की है कि तुम्हें गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर, बल्कि कौन सी रूह मिली है? आप खुदा के ले पालक। कितने लोग ले पालक समझते हैं? आप दोनों आए, मैं बोले आप भी आए, दोनों आए, दोनों बुजुर्ग आ रहे हैं। मैं कहते तुसी बोर ना हो, मेरे नाल रहना। कितने लोग मेरे साथ? आ जाए